Greetings, students. Today we are going to study the fifth lesson, Should Wizard Hit Mummy? This is the fifth lesson of Vistas, our English supplementary reader. In this chapter, we are going to study a unique story, and I think it will please you. It's my assurance. You will like it. Should Wizard Hit Mummy? Written by John Updike. First of all, I'm going to read out before you read. Here is a story about the world view of a little child and the difficult moral questions she raises during the story session with her father. यहाँ पर एक ऐसी कहानी का विवरण दिया गया है, बिल्कुल जो सार्वजनिक है, एक छोटे से बच्चे के बारे में है जो कहानी के दौरान अपने पिता से बड़े ही नैतिक क्वेश्चंस लेकिन कठिन क्वेश्चन वो करती है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं यहाँ पर एक ऐसी सार्वजनिक कहानी का जिक्र किया गया है जिसमें एक बच्ची अपने पिता से कुछ क्वेश्चंस करती हैं कहानी सुनाने के दौरान। In the evenings and for Saturday naps, like today's, Jack told his daughter Jo a story out of his head. शाम में और दोपहर सैटरडे में, जैसे कि आज, जैक अपनी पुत्री जो को अपने मन से बनाकर कहानी सुनाता है। This custom began, here should be begin. This custom began when she was 2, was itself now nearly 2 years old, and his head felt empty. यह रिवाज तब शुरू हुआ जब उसकी बेटी की उम्र 2 वर्ष की थी और आज इसे 2 वर्ष पूरे हो गए हैं और अब उसे लगता है कि उसका दिमाग पूर्णतः खाली हो गया है। Each new story was a slight variation of a basic tale. A small creature usually named Roger, Roger Fish, Roger Squirrel, Roger Chipmunk, had some problem and went with it to the wise old owl. प्रत्येक कहानी में पहले की कहानी से थोड़ा सा अलग उसका कंटेंट होता था या अलग कहानी होती थी। उसमें एक छोटा जीव था जिसका नाम हमेशा रोजर के नाम से शुरू होता था, जैसे रोजर्स फिश, रोजर्स मछली कहेंगे, रोजर स्क्वेल, रोजर चिपमंक। और उसके पास या उसके साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाती थी और उसी प्रॉब्लम को लेकर वो एक बूढ़े बुद्धिमान उल्लू के पास जाता था। The owl told him to go to the wizard and the wizard performed a magic spell that solved the problem, demanding in payment a number of pennies greater than the number that Roger creature had. But in the same
breath, directing the animal to a place where the extra pennies could be found. जो बूढ़ा उल्लू था वह उसे जादूगर के पास जाने को कहता और जादूगर कुछ मंत्र बोलता और उसकी प्रॉब्लम को सोल्व कर देता और बदले में उससे वो कुछ पैनी मांगता, उतनी पैनी मांगता जितने की रोजर के पास नहीं होती थी। फिर वही जादूगर उसको एक ऐसे स्थान पर जाने को कहता जहाँ पर उसे एक्स्ट्रा पैनी मिल सकती थी। Then Roger was so happy he played many games with other creatures and went home to his mother just in time to hear the train whistle that brought his daddy home from Boston. और फिर वह रोजर एनिमल बाकी सब जीवों के साथ खेलता और बड़ा खुश हो जाता और शाम को घर चला जाता अपनी माँ के पास। और जब वह घर जाता तो उसे गाड़ी की सीटी सुनाई देती जो उसके पिताजी को बोस्टन से घर ला रही होती थी। जैक described their supper and the story was over. उसके पश्चात जैक उनके भोजन के बारे में वर्णन करता था और कहानी समाप्त हो जाती थी। Working his way through this scheme was especially fatiguing on Saturday because Joe never felt asleep in naps anymore. And knowing this made the ride seem futile. इस प्रकार से काम कर कर विशेष रूप से शनिवार को दोपहर के समय क्योंकि उस समय जो उसकी पुत्री थी वो सो नहीं रही थी और उसे लगता था कि उसकी सभी युक्तियां व्यर्थ थी, फ्यूटाइल। द गर्ल नॉट सो लिटल एनीमोर, द बम्प्स हर फीट मेड अंडर द कवर वर halfway down the bed, their big double bed that they let her to be in for naps and when she was sick, had at last arranged herself, and from the way her fat face deep in the pillow shone in the sunlight sifting through the drawn shades, it did not seem fantastic that some magic would occur and she would take her nap like an infant of 2. सेंटेंस बहुत ही लंबा है लेकिन हम समझने पर आए तो कुछ भी हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। वह छोटी लड़की जो वास्तव में छोटी नहीं थी क्योंकि जब उसे सुलाया जाता था तो डबल बेड के बीच तक वो आती थी और उस बेड को उस समय प्रयोग में लाया जाता था जब या तो वो दोपहर के समय वो सोती थी या फिर वो जब बीमार होती थी। उसने अरेंज किया और उसके चेहरे को पिलो के ऊपर रखा तो वो एकदम से दिखाई दे रहा था और उसकी परछाई भी ड्रॉ हो रही थी, चित्रित हो रही थी, दिखाई दे रही थी या रिफ्लेक्टेड हो रही थी। और ऐसा कोई भी फैंटास्टिक आइडिया नहीं था, कुछ भी ऐसा प्रतीत नहीं होता था उपयुक्त
कि कोई जादू उसके ऊपर किया जाए और वो 2 वर्ष के बच्चे की भांति दोपहर के समय में सो जाए। ऐसा कोई भी युक्ति नहीं दिखाई दे रही थी, सब युक्तियां व्यर्थ जा रही थीं। हर ब्रदर बॉबी वॉज टू एंड ऑलरेडी asleep विद हिज बॉटल। उसका छोटा भाई जो 2 वर्ष का था अपनी बोतल के साथ सो गया था, अर्थात दूध की बोतल अर्थात दूध पीते पीते सो गया था। जैक आस्क्ड हु शैल द स्टोरी बी अबाउट टुडे। जैक ने अपनी बेटी से पूछा कि किसके बारे में, किस क्रिएचर के बारे में मैं आज आपको कहानी सुनाऊं। रोजर जो स्क्वीज्ड हर आईज शट and smiled to be thinking she was thinking. Her eyes opened, her mother's blue skunk, she said firmly. जो ने अपनी आंखें बंद की, जैसे हम कड़ी बंद करें, थोड़ा सा सोचने का प्रयास करें, आंखें थोड़ा सा कड़े से बंद करेंगे तो हमें पता चलेगा। और उसने सोचा, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस बिकॉज यू नो वेरी वेल वी कांट इग्नोर सच टाइप ऑफ environmental effect on education। उसने कुछ समय के लिए सोचा और मुस्कुराई और सोच रही थी, लग रहा था कि वो सोच रही थी। और उसके बाद उसने अपनी आंखें खोली, नीली आंखें उसकी माँ के जैसी थी, और उसने दृढ़ता से कहा skunk, it means रोजर skunk, a new animal, they must talk about skunks at nursery school। और एक नए जीव के बारे में उनके स्कूल में आज बातें हुई होंगी, ऐसा उसके पिताजी सोचते हैं। हैविंग अ फ्रेश हीरो मोमेंटरीली स्टीट जैक टू क्रिएटिव एंथुसियाज्म। और इस पल भर के नायक ने जैक को थोड़ा सा सोचने पर मजबूर कर दिया और उन्होंने साहस को जुटाया। ऑल राइट ही सेड, उन्होंने कहा ठीक है। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है। इन द डीप डार्क वुड, घने जंगल में, देयर वॉज अ टाइनी लिटिल क्रिएचर बाय द नेम ऑफ रोजर स्कंक। घने वन में एक रोजर स्कंक नाम का एक प्राणी रहता था। एंड ही स्मेल्ड वेरी बैड, और उसमें से बड़ी दुर्गंध आती थी। यस जो सेड, और जो ने भी अपनी हामी भरी। ही स्मेल्ड सो बैड दैट नन ऑफ द अदर लिटल वुडलैंड क्रिएचर्स वुड प्ले विद हिम। वो इतनी बुरी दुर्गंध छोड़ता था कि कोई भी वन्य प्राणी उसके साथ, छोटा वन्य प्राणी कह सकते हैं, उसके साथ खेलने को तैयार नहीं था, दूर भागते थे उससे। जो लुक्ड एट हिम सोलमली, थोड़ा सा हम कह सकते हैं सोलमली, हम यहाँ पर इसका मीनिंग जो रहेगा, थोड़ा सा आश्वस्त होकर उसने उसकी तरफ देखा। जैसे बच्चों को कहानी सुनाते हैं तो वो सतर्क हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से वो भी सतर्क हो गई। शी हैडंट फोरसीन दिस, और उसको ऐसा नहीं देखा गया था पहले कभी, अर्थात रुचि दिखाई उसमें सुनने में। वैन एवर ही वुड गो आउट टू प्ले, जब कभी वो बाहर खेलने के लिए जाता, जैक कंटिन्यूड विद जेस्ट, जैक ने ये बात बड़े उत्साह के साथ जारी रखी। रिमेंबरिंग सर्टेन ह्यूमिलिएशंस
ऑफ हिज ऑन चाइल्डहुड, अपने बचपन की कुछ निश्चित मानवीयताओं को याद करते हुए, ऑल द अदर टाइनी एनिमल्स वुड क्राई, तो बाकी सब वन्य छोटे जीव चिल्लाते, उह आह, हियर कम्स रोजर स्टिंकी स्कंक, ये आ रहा है बदबूदार रोजर स्कंक, एंड दे वुड रन अवे, एंड रोजर स्कंक वुड स्टैंड देयर ऑल अलोन, and two little round tears would fall from his eyes. ऐसा कहते ही जो वन्य छोटे छोटे जीव थे वो उससे दूर भाग जाते और रोजर स्कंक बेचारा अकेला रह जाता और उसकी आंखों से छोटे छोटे दो गोल आंसू बह जाते, गिर जाते. द कॉर्नर्स ऑफ जॉज mouth dropped down and her lower lip bent forward as he traced with a forefinger along the side of her nose the course of one of Roger Skunk's tears. जैसे ही जो ने रोजर स्कंक्स के टीयर्स की बात सुनी तो उसका जो चेहरा था वो उतर गया और उसने अपना नीचे वाला होठ नीचे की तरफ बढ़ा दिया, जैसे रूठ जाते हैं बच्चे, जैसा तब करते हैं, और अपनी नाक को अपने फिंगर टिप्स के साथ छुआ और एक तरफ किया उसने, अर्थात नाराज़गी जताई, ये कह सकते हैं सीधा सीधा. Won't he see the owl? She asked in a high and faintly roughened voice. उसने ऊंची और कड़े स्वर में पूछा, क्या वह उल्लू से नहीं मिला? It means she was giving direction to her father to include owl in his story. Sitting on the bed beside her, Jack felt the covers tugs as her legs twist tensely. बेड पर उसकी बेटी के पास बैठते हुए उसने जो वहाँ पर तकिए उनके पाँव के कारण थोड़े से अव्यवस्थित हो गए थे उनको व्यवस्थित किया. He was pleased with this moment, और इस पल से वो बड़ा खुश था. He was telling her something too. वह उसको कुछ सत्य बता रहा था. Something she must know. कुछ ऐसा जो उसे जानना चाहिए. And had no wish to hurry on. और उसको जल्दी की कोई भी ज़रूरत नहीं थी या इच्छा नहीं थी. But downstairs a chair scraped and he realized he must get down to help Claire paint the living room woodwork. और उसी समय उसको कुर्सी के घसीटने की आवाज़ नीचे से आई और उसको एहसास हुआ कि उसे नीचे क्लेयर की हेल्प के लिए जाना होगा जो नीचे लकड़ी का जो काम किया गया है उसके ऊपर पेंट कर रही थी. Well, he walked along very sadly and came to a very big tree. And in the tip top of the tree was an enormous wise old owl. ठीक है, वह बड़ा उदास हुआ और उदासी के साथ चलता चलता एक पेड़ के नीचे आ गया, बड़े से पेड़ के नीचे कह सकते हैं, और उसी पेड़ की बिल्कुल चोटी पर एक बड़ा सा बूढ़ा उल्लू रहता था. गुड. अब लड़की खुश हुई और उसने कहा, बहुत अच्छे. मिस्टर आउल, रोजर स्कंक said, all other little animals run away from me because I smell so bad.
मिस्टर आउल, रोजर स्कंक ने कहा, सभी वन के छोटे जीव हैं, वो मुझे दूर भाग रहे हैं, भाग गए, क्योंकि मुझसे बहुत बुरी दुर्गंध आती है। सो यू डू, द आउल सेड, वेरी वेरी बैड। ऐसा ही है, आउल ने कहा, बहुत बहुत बड़ी दुर्गंध आ रही है। What can I do? Roger Skunk said, and he cried very hard. मैं क्या कर सकता हूँ? और इतना ही कहने के पश्चात वो जोर जोर से रो पड़ा। The wizard, Joe shouted and sat right up, and the little golden book spelled from bed. जो ने चिल्लाते हुए कहा, द विजर्ड, जादूगर, वह जादूगर। और इसी समय उसकी जो छोटी सी सुनहरे रंग की पुस्तक थी वो बेड से नीचे गिर गई। ओके स्टूडेंट्स, this is the end of the first part of this lesson, and I think it will help you a lot. Thanks, and a good day for you.